In today's session, in today's discussion, we will try to understand कि जब भी हम बात करते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन की, ऐसा क्या है रीडिंग कम्प्रिहेंशन में कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पैसेज भी कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा होता है. So is there any proper way, is there any proper method to solve this particular question? If there is a particular method, if there is a way, then what is that way? In today's discussion, we will try our level best to explore all those dimensions. In these dimensions, we can solve this particular passage. This passage, the paper of prescient composition, is considered relatively easy as compared to English essay. Though it is easy, I do admit, I do second it. But once again, if you are not an ardent reader of the book, if you have no how you're going to read it, how you're going to understand this particular passage, the things they are going to give you a tough time. In today's discussion, we will try to encapsulate all those facets where we need to work hard. So first of all, I'm going to share some tips and tricks with you. In the first part of today's session, today's lecture, we will talk about reading comprehension. I will give you some tips. Then I will try to solve a particular passage in front of you. I will try to let you know how you can put the answers and what is the particular technique that you can apply here. In the second section, we are going to have some idioms. In the third section, we are going to memorize the vocabulary of the verb. So let's take a start. First of all, let me share the notes that I was jotting down before this class. Yes, imagine we have this particular passage. We have this particular passage. Whenever we talk about reading comprehension, there are certain steps that we need to follow. See, मेरे पास अभी अगर मैं स्क्रीन पे इफ आई क्लिक ऑन दिस मेन्यू तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आ जाएगा और प्रिंट के बाद आता है प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि वो मुझे बताना चाहता है कि जैसे आपका पेज प्रिंट होकर निकलेगा वो एक दफा देख लीजिए कि वो कैसा है. कुछ ऐसा ही आपने करना है अपने पैसेज के साथ. प्रीव्यू द पैसेज. इससे पहले कि आप डिटेल्स में चले जाओ, इससे पहले कि आप उसके मुख्तलिफ जो है वो फेसेट्स को देखने की कोशिश करो, इससे पहले कि आप ये जो है वो समझने की कोशिश करें कि जनाब आपका पैसेज जो है उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं, टाइटल को, हेडिंग्स को. अब आपने सबसे पहले जो है एक काम ये करना है कि आगाज में एक दफा उसे देख लीजिए. पहला स्टेप सिर्फ यही है. In the first step, you are supposed to have a look, a bird's eye view of the passage. Like, what is the length of the passage? What what is the length of the passage? How many total paragraphs are there in your passage? So you are supposed to have a look on this particular passage. When we talk about the second step, that is very important step. That is identify key information. Participants, whenever I talk about key information, you need to understand the word key. Why the word key is there? If the word key is not important, if I want to just let you know, please identify information. Why? That means supposed to unlock a lock, you need a key. In the second step, you are supposed to identify the key information. But the question is, we are unable to understand the key. So what do you mean by a key? What is a key after all? What happens whenever you are given your reading and comprehension passage? You take some time. It is not possible for you to read your passage and understand your passage in a single go. For example, we have this CSS paper in front of us. So how it is possible for you to read this passage quickly? Though you have limitation of time, but still you will take some time. It is not possible for you to read this passage just for a single time and answer all these questions. It is a long passage. Just check it out. So you need to
highlight some important key points. And when I say you need to highlight the key points, key information, I mean you need to understand these are the things that I cannot ignore in my passage. You are going to answer the questions, but without understanding a passage, you cannot answer, you cannot solve this particular activity. Here, I would like to add another tip for you. Remember one thing in your paper, what happens if you are not a daily dawn reader, if you are not reading article of the day, if you are not reading books, and you are in search of shortcuts, you are thinking like, all right, if I want to achieve this particular goal, what I will do, I will search out the shortcuts. The shortcuts, they are not going to work here. Your reading skills will help you in identifying the key information. That is the second step. The first step is you are previewing the passage. You are just having a bird's eye view on the passage. The second step is you are talking about, you are highlighting some key information. So these two steps are there. Before proceeding further, I want to know the things that are clear till now. The first of all, I have talked about the bird's eye view. You just need to have a bird's eye view, and in the second step, you will highlight the key information. Maybe you use lead pencil here. Maybe you can, highlight the points using your pen on the paper because there is no limitation on it. You can do it. Is it clear? Okay, the things are clear with Muniba and the rest of the people. I need some confirmation. Third step. Whenever we proceed further on the third step, then we are breaking it down. That is the very important subject and the step as well. Breaking it down. This time you will divide the passage into section. Bird's eye view, getting key information. You have already read the passage one time. एक दफा पहले पढ़ चुके हो. But now what are you doing? You are reading it at a second time. This time you are giving the passage another reading and you are breaking it down. So what will happen ultimately? So when you will break down the passage, you will comprehend something new, something that was not in your attention for the very first time. So you are concentrating more and more, more and more. Just imagine a situation if you're sitting with your friends and your friend is saying, "Hey Naeem, how are you?" And if Naeem is there in this hypothetical scenario and Naeem is not understanding, Naeem will ask it again, हाँ क्या कहा? तो वो दोबारा कहेगा, but this time Naeem will put his 100% concentrate on the sentence कि उसका दोस्त क्या कह रहा है. So in the third step you are supposed to break it down, okay? But you need to understand कि जो breakdown होना चाहिए ये इस तरह से होना चाहिए कि you do understand each and everything. This is the third step. Bird's eye view, you have highlighted the information, and at the third step you are breaking it down. At the fourth step, look for the signal words. Yes, whenever you are there on the roads, the signals are there. So you will locate some words that will tell you कि हमारे दरमियान relationship ये है, जो बताएंगे एक particular word बताएगा कि सारे का सारा फिक्रा इस तरह से दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो आपको उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी. अमूमन आम तौर पे whenever you talk about the transitions like however, therefore, because, although, ये आपको बताते हैं कि ताल्लुक कैसा है. So these particular transitions, they give you the context and guide your understanding. So remember, participants, the signal words, they are going to be very, very, very important, because if the transition is however, it means you need to understand that something is going to happen there. If the writer is using in addition to, it means he is adding up the information. So the transitions, they are going to work here. Then जब आप पढ़ रहे होते हो, पांचवें स्टेप में आपने प्रिडिक्ट करना होता है. हाँ यार, ये पूछ सकता है, ये बात हो सकती है, इस तरह से चल सकता है. यू नीड टू प्रिडिक्ट द कंटेंट. अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पैसेज पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग अ पैसेज ऑन क्लाइमेट चेंज.
अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैंने क्लाइमेट चेंज को पढ़ते ही मेरे जहन में क्या आएगा कि क्या ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बात करेगा या हक में बात करेगा, फेवर और अगेंस्ट। आपको क्या लगता है? मैंने सिर्फ पहली दो लाइनें पढ़ी हैं, मैं क्या ये प्रिडिक्ट क्या करूंगा दिस पैसेज इज इन द फेवर ऑफ क्लाइमेट चेंज और अगेंस्ट इट? क्या लगता है? कोई भी पैसेज नॉर्मली क्या हो सकता है, फेवर में या अगेंस्ट होगा? आपको क्या लगता है? ये क्लाइमेट चेंज जो है वो, उसको कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट होगा। हमारे क्लाइमेट को जो है वो सर्टेन रहना चाहिए। देन हमने जो है करने के बाद, ये प्रिडिक्शंस करने के बाद तीसरी दफा पैसेज को दोबारा पढ़ा। दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग, दिस टाइम वी आर विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, दिस टाइम we are seeing the picture in front of us, like whatever is there on the paper, we are trying to have it in front of our eyes. For example, if the writer is talking about the machinery, if the writer is talking about the migration, if the writer is talking about the Chandrayaan, if the writer is talking about the army, if the writer is talking about the terrorism, you need to visualize everything. You know, your visualization power is very, very, very high. If I say, just close your eyes and feel you are on the moon, your mind is everything. It is very powerful entity. So in the very next moment, you will feel, yes, we are over the moon. So read actively, but this time you are supposed to visualize the things. If you will imagine the picture, all the things will be clear. So read actively plus with visualization. And remember one thing, it is very important trick, by the way. Whenever in your life you read with visualization, you never ever forget anything. In my life, whenever I read any book, I visualize every single sentence in front of me. I feel the writer is talking to me. He has written down this particular manuscript for me. So visualization is going to develop a very crystal clear picture in your mind. That is the step number 6. Number 7 is infer meaning. Remember, participants, if I'm saying, for example, Pakistan is progressing by leaps and bounds. So, do you understand what I mean actually? Under PDM or under interim government, Pakistan is progressing by leaps and bounds. Did you get the actual meaning? What I want to say is, really Pakistan progressing by leaps and bounds under this interim government? Yes or no? I'm saying Pakistan is progressing by leaps and bounds under this interim government. क्या वाकई में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के जो है वो? The answer is no. But I didn't say no. How you people infer the meaning, it is natural. So you need to be able to deduce the meaning. आपकी शख्सियत इस कदर प्रैक्टिस, महारत आ जानी चाहिए कि लफ्जों के साथ खेलना और अल्फाज का गंजीना गौहर को आप जो हैं वो अखज़ कर सकें. In your personality, in your traits, the capability should be there that you need to deduce the actual meaning. If you are not deducing the meanings, it means you need more practice. And the next, for example, infer किया, infer करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? चलिए देखने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन टाइप्स. अब एक दफा क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे. अभी इस एक्टिविटी को करेंगे, द थिंग्स विल बी मोर क्लियर. क्वेश्चंस को पढ़ेंगे 8वें स्टेप में. क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम दोबारा चले जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर. एंड दिस टाइम हम टेक्स्ट को पढ़ते हुए ये देखेंगे इसका आंसर किस लाइन में. अब हमें वो लाइनें मिल जाएंगी where we have the answer. And the next particular strategy is the elimination strategy. Honorable participants, once you will be able to find out the actual answer, for example, this is a passage and I feel, okay,
The answer of this question is starting from Prime Minister Tony Blair and it is ending here, ever seen. But I'm not going to quote, I'm not going to extract these lines exactly. I'm not going to put these lines in my answer. What I will do, I will have to follow this particular strategy there. That is the elimination strategy. That means I need to understand how I can eliminate the irrelevant words. This time, I need to narrow down my choices. I need to understand I cannot take on board all the words. The next particular step is regularly practicing. When you're not practicing on regular basis, the weekly basis, remember one thing. There is no power on this planet Earth that can help you in easily passing through the paper. Just yesterday, a participant did contact me. उसने मुझे कहा कि I'm very worried about my exams. I mentioned, मैंने उन्हें बताया और ये वो point number 11 था. Because it's not possible for any aspirant on the earth कि जिसकी practice ही नहीं है, जिसने इससे पहले ना कभी इसको solve किया, ना check करवाया, ना उसे पता है एग्जाम्स में कैसे करना है, तो उसे अगर आप बताओगे कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप फील करोगे कि ऐसे लोग जो सेल्फ ब्लैकमेल का शिकार होते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, वो आपसे वो यही फील करेंगे ये तो एक इंतहाई फजूल एक्टिविटी है, बिकॉज राइटिंग इज गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम. लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और दिमाग को जब भी कोई काम करोगे ना जिसमें दिमाग का एक्टिविटी होती है, जिसमें से कोई काम करना पड़ता है, वो भागेगा. मोबाइल फोन यूज करना होगा, कहेगा जबरदस्त यार लाओ, 1 घंटे की मूवी देखनी है वो देखेगा. शॉर्ट्स दिखाते रहो, इसको 3-3 घंटे तक देखते रहोगे. हाँ बस सुबह उठा लेटा हुआ है, अभी उठता हूँ 10-15-20 मिनट तक, रिलैक्स है. क्या वजह है कि किताबों तक आते हुए टाइम लगता है और लिखते हुए और ज्यादा टाइम लगता है. दैट इज बिकॉज योर माइंड इज एवरीथिंग. आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करना चाहते. ये कैसे मुमकिन है कि पेपर में जाके वो अचानक से सारी की सारी चीजें लिखना शुरू कर देगा. हाउ इट इज पॉसिबल. तो मैंने एक ही रिकमेंडेशन दी थी, प्रैक्टिस करो और किसी ढंग के बंदे को चेक करवाओ. सो ऐसे का ऐसे सब्जेक्ट है. प्रेसी का पेपर ऐसा है जो पास नहीं होने देगा जब तक लिखना नहीं आएगा. तो बहुत से स्टूडेंट इस स्टेप से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डर जाते हैं, समझते हैं यार ये नहीं होगा, हम वहीं पे जाकर लिख लेंगे. सो वो यहाँ पे, और जब उन्हें एफपीएससी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक किया जाता है, तो फील कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा. तो एफपीएससी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करवाना भी जरूरी होता है. ओके जी, सो हमने इस इन इन पैसेजेस के ऊपर काम करना, इन पैसेजेस के ऊपर काम करना. दिस इज समथिंग, दीज आर द स्टेप that we need to follow the question and answer strategies. It is definitely going to help us. Before proceeding further, please do guide me. क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? The next thing that I'm going to talk about, the next step that I'm going to mention, my words, they're very, very, very important now. Please listen all these words. Please note these words down in your diaries or whatever you have, because you need to follow every single piece of advice. The first thing is you are supposed to read this passage for 5 times, not once, twice, thrice, fourth, five. Fifth is the maximum number for the rest of the people, but for you, it is the minimum number, the lowest number. Like you can read the passage for 6 times, but you cannot read the passage for 4 times, 5 times. That is the first rule. That is the first piece of suggestion, rather instruction. You are going to read it. The second thing is, in case you are not getting the meaning, read it again. You need to understand what writer is trying to say here. What is the point that writer is trying to establish? You need to understand what is going on inside in the mind of the writer. So if you're not getting it, it means you need to keep reading it. Yes, time end हो जाएगा अगर practice नहीं की होगी तो.
Yes, you are absolutely right. Hands off for you. Yes, टाइम खत्म हो जाएगा उन लोगों का जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा, वो प्रेसी पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या खत्म होगा? They will not be able to make through this paper if they have not practiced. So those people who are appearing in the CSS special, they have chance with them. उन्हें daily basis पर लिखना चाहिए, करना चाहिए. Otherwise, this passage is long enough कि ये आपके time का एक अच्छा खासा chunk खा जाएगा. Next, ये पैसेज जो है बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जिन्हें इस पैसेज को 5 दफा पढ़ने के लिए मुसफ्फिरा सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे. 5 दफा पढ़ने के लिए, नॉट फॉर 1 2 और 3, 5 दफा पढ़ने के लिए, बिकॉज दे आर रीडिंग बुक्स ऑन रेगुलर बेसिस. दे आर रीडिंग 40 to 50 पेजेस ऑन रेगुलर बेसिस. लॉट मेनी पीपल आपके क्लास में ऐसे ऐसे बड़े जिम में बड़े हीरे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े काबिल लोग हैं. दे आर रीडिंग, they on daily basis they're doing their practice. So उनके लिए ये मसला नहीं है जो भी प्रैक्टिस करता है. और ये ऐसा नहीं है कि इट इज अ गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, उन्होंने अटेन किया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये सभी जो है वो हासिल कर सकते हैं. द सेकंड पीस ऑफ सजेशन इज दैट, second piece of suggestion is that after this, please come on this section. Please try to focus on the questions as well. This time, after reading the passage for 5 times, you will try to read the questions. What are the questions? This time, you are not going to answer the questions. This time, you are just going to read the questions. What is the demand of the examiner? What examiner is demanding after all? Then, एक एक सवाल के मुताबिक आंसर्स यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो. एक एक सवाल के मुताबिक आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे, बट पैसेज में से अल्फाज उठाओगे या नहीं उठाओगे? You will pick up the language, the words from the original passage, yes or no? क्या लगता है? You are supposed to pick up the words from the original passage, yes or no? क्या लगता है? Not at all. Not at all. Not in any case. Not in any case. Even those people जिन्हें अपना प्रैक्टिस सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, even they are requested not to pick even a single word from the original passage. And yes, why you are not supposed to? अपने आंसर्स छोटे लिख लो, टू द पॉइंट लिख लो, लेकिन अगर वर्ड्स उठाए तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने पास कुछ बनाए. यही मुझे एक स्टूडेंट जो है वो कुछ दिन पहले कह रहे थे. हर साल ही कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई एक ऐसा ऐसे बना के दे दें कि जो सबके सब जो है वो ऐसे इसके अंदर चल जाए, जैसा हम अपने एफएससी के अंदर करते आए हैं, जैसे हम बीए बीएससी में करते आए हैं, जैसे हम मास्टर्स के अंदर करते आए हैं. सो द सेम प्रैक्टिसेस. तो मैंने उन्हें बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ कि आप अपने एग्जामिनर को चीट कर सको इस लेवल. और एग्जामिनर जो है वो आपकी सही लैंग्वेज, आपने सारे के सारा सही लैंग्वेज के साथ भी ऐसे लिखा, वो फिर भी फेल कर देगा. उसको कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप कर सको? बट यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना, लेकिन एक लिमिटेशन है. देयर इज अ बाउंड्री लाइन. इस पैसेज के अंदर से ही जो है वो आइडिया लेना है, अपने पास से आइडिया नहीं लेना. वो जो आइडिया है दैट इज इन योर माइंड, यू आर नॉट सपोज टू टेक समथिंग दैट इज बियॉन्ड दिस पैसेज. द लिमिटेशन इज you need to remain in the very limitation, in the boundary of this passage. So once you have taken, you have answered all the questions, highlight कर लिए, मेरे यहाँ से यहाँ तक जवाब है, मेरे यहाँ से यहाँ तक जवाब है, अब आगे मैं क्या करूँ? This time revise it. दोबारा चेक करो, रिवाइज करो.
स्पेलिंग्स की गलतियां चेक करो, ग्रामर को देखो, इडियम्स को देखो जो यूज किए हैं। अब इसके बाद जो है वो आगे चलो। आपने जो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको ठीक तरह से पढ़ लिया हो। ठीक तरह से पढ़ने के बाद उनका आंसर, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में वो कुछ पूछ रहा है और आपका जवाब पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। सवाल गंदम जवाब चना और ये पैसेज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, नॉट एट ऑल। आखिर में ये कैसे है, उसने जो बताया कि इसका हमें एक टाइटल वो पूछ लेता होता है, यहाँ से जो है बाजुकात वो पैसेज का टाइटल पूछ लेता है, वो कैसे देंगे? पैसेज आपने देखना है कि जैसे आपके न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं, जैसे आपके एडिटोरियल्स की हेडिंग्स होती हैं, पैसेज आपका मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम मीनिंग्स। जैसे हमारे पास जो है वो पाकिस्तान की, अगर किसी ने मुआशी हालत पे ऐसे लिखा, उसने लिखा पाकिस्तान इज नो मोर, पाकिस्तान इज नो मोर। अब ये सारे के सारे मीनिंग्स को कम्युनिकेट करता है, बता देता है। तो ये हमारे पास होंगी जी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि क्या जो चीजें मैंने बताई हैं उनकी समझ आई आपको? पता चला कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ताकि हम एक जो है वो टॉपिक उठाएं और उसको जो है वो हल करने की कोशिश करें। हाउ मेनी आर देयर जिन्होंने इसको जो है वो समझ लिया? हाउ मेनी आर देयर? चलो एक दफा अब इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास जो है वो पैसेज है क्या। ठीक है, हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर पैसेज में, चलिए ये हमारे पास जो है वो पीएमएस का पेपर। ओके जी। In its response to 9/11, America has shown itself to be not only a hyperpower but increasingly assertive and ready to use its dominance as a hyperpower. अब एक लाइन पढ़ी, इसको डाइजेस्ट करना है, इसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने से क्या मुराद है मेरी यहाँ पे? डाइजेस्ट करने से मुराद मेरी ये है कि इस लाइन के ऊपर रुकोगे। यू आर supposed to take some time. As I mentioned earlier, the first thing is you are supposed to grasp the meaning of this particular passage carefully. Remember, participants, if you are not understanding the meaning, आप अपने साथ जो है वो कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, एक दफा इस पैसेज को पढ़ते हैं मिलके, उसके बाद समझते हैं मिलके, उसके बाद आंसर्स देने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने इसको किया कैसे। जो प्रोसेस फॉलो था, जो मैंने बताया, थियोरेटिकली चीजें मैंने बताई, उनको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इनको वन बाय वन पढ़ के हम देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स रीड इट। यस प्लीज। In its response to दूसरा। 9/11, America has shown itself to be not only a hyperpower, but increasingly assertive and ready to use its dominance as a hyperpower. After declaring a war on terrorism, America has led two conventional wars in Afghanistan and Iraq, demonstrating its overwhelmingly awesome military might. But these campaigns reveal something more: America's willingness to have recourse to arms as appropriate and legitimate means to secure its interests and bolster its security. It has set forth a new doctrine, the right of preemptive strike, when it considers its security and therefore its national interest to be at risk. The essence of this doctrine is the real meaning of hyperpower. Prime थैंक यू सो Minister मच। अब अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रुकिएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली रीडिंग के साथ जिनको क्लियर हो चुका है, दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। इफ नॉट तो आप नो लिखिएगा। किसी को क्लियर हुआ? मुस्फिरा को क्लियर हुआ, शाबाश, जबरदस्त। मुस्फिरा, वैसे मुझे नहीं हो सका ऑनेस्टली स्पीकिंग मुस्फिरा,
मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा, बट माशाल्लाह आई एम हैप्पी यू आर अ जीनियस, ग्रेट, जबरदस्त। मुझे इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, बिकॉज मुझे मीनिंग इसके समझ नहीं आ सके। मुझे ये पता चल गया कि इस पैसेज के अंदर क्या है, बट आई नीड टू रीड इट अगेन। सो शायद हमें ज्यादा लोगों को जो है वो इसको दोबारा पढ़ना पड़े। तो अगर हम में से ज्यादा लोगों को ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो हम मेक इट श्योर करेंगे इस दफा जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम आंसर्स को, मीनिंग्स को जो है वो देखें। ठीक है, मीनिंग्स को जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जो है वो अभी अगला पैसेज कंप्लीट करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर हैज कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड that the only option in the face of hyperpower is to offer voice counsel, but increasingly this is a course that governments and people across the world have refused. The mobilization for war against Iraq split the United Nations and provoked the largest anti-war demonstrations the world has ever seen, and through it all, America maintained its determination to wage war alone if necessary and not to be consulted by the concerns of supposedly like there rather than engage the influential new breed of new conservative radio and television hosts went much further. They acted as ringmasters for outpourings of public scorn that saw French fries renamed freedom fries and moves to boycott French and German produce across America. If one soundbite can capture a mood, then perhaps it would be Fox News at the height of the tension over a resolution made war in Iraq. Mr. O'Reilly told his viewers that the bottom line no moral equivalence between the US and Belgium. It is in effect the ethos of hyperpower articulated and made manifest in the public domain of 24-hour talk, and America's willingness to prosecute war has raised innumerable questions about how it engages with other countries. Afghanistan has seen the removal of the Taliban, but there are no official statistics on the number of innocent civilians dead and injured to achieve that security objective. The people of Afghanistan have witnessed to descent into the chaos that preceded the arrival of the Taliban, a country administered not by a new era of democracy under the uh, sir, what's the word? under the tutelage of the hyperpower, but merely By the return of the warlords. Beyond Kabul, much of the country all remains right. to enslaved. Mm-hmm. All right. Thank you so much. It was a long passage, and I'm sure you people have enjoyed the reading. कि इसको यहाँ पे पढ़ने से अगर आपके सर में दर्द होना शुरू हो गया है सबके, तो वहां पे भी पढ़ के आपको कुछ इससे डिफरेंट फीलिंग्स जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द रीडिंग। आपने इसको एंजॉय किया है, इसकी रीडिंग को? यस और नो? रीडिंग इसकी एंजॉय की है, इट वाज अ लॉन्ग पैसेज, इसकी रीडिंग आपने एंजॉय नहीं की। तो इट मीन्स कि आपको इंजॉयबल पैसेज जो है वो कुछ ने इसको एंजॉय किया, कुछ ने नहीं किया। ज्यादातर लोगों ने इसको जो है वो आंसर नो में है, दो तीन का हमारे पास यस में है। बट ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पैसेज है, जिसे आप 2 से 4 दफा पढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो यकीनन इसका आंसर आ जाएगा और आप इसको देखेंगे। अब सवाल हमारे पास जो है वो ये आता है कि ये पैसेज तो हमने पढ़ लिया, अब इसके आंसर्स हम देखने जाएंगे, वो कैसा होगा? आंसर्स देखने से पहले एक दफा जरा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। What does the doctrine of power set by the new imperial America deny space to counseling?
What is the essence of moral equivalence where war has no justification? Why do countries occupied under the tutelage of hyperpower have no peace? Arguably, Europe and hyperpower US are at cross purposes over the concept of war. Are they? Why? Why Tony Blair meant by wise counselor? What Tony Blair is meant by wise counselor and did it prevail? अब यहाँ पे हम जो है वो जब प्रोसीड फर्दर करते हैं तो फिर हमें जो है वो पता चलता है कि जनाब इस पैसेज को तब तक हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक टाइम एंड अगेन पढ़ नहीं चुके होते। यहाँ पे हमारे पास हमारी पहली एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम 2 दिन गुजारेंगे, दो जो है वो क्लासेस करेंगे। मैं आपके लिए एक्टिविटी ये छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ूंगा, लाइक अभी अभी वी हैव क्लास है और लाइक हम एंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी ये है कि इस पैसेज को 5 दफा पढ़ना है, न सिर्फ इस पैसेज को। 2022 का भी नेम सब प्लीज शेयर कर दीजिएगा पेपर, और 2023 का भी शेयर कर दीजिएगा। इन पैसेजेस को 5 5 दफा पढ़ना है, और सिर्फ आपने ये जो पेपर होगा इसके ऊपर अभी सिर्फ आपने मार्क कर देना है, जो कि बहुत आसान सी एक्टिविटी है, इंतहाई आसान सी, कि जिस तरह से ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। इसमें उसने बताया कि हमारे पास जो है व्हाट टोनी ब्लेयर मेंट बाय वाइज काउंसलर, तो हमें ये पता चलता है कि एंड वाली लाइनों के अंदर कहीं पे टोनी ब्लेयर की वाइज काउंसलर की बात थी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो अभी आपने सिर्फ मार्क करना है, पढ़ने के बाद अपने आप को रीड करना है कि मैं किस लेवल पे कर रहा हूँ। लाइक डू यू फील लाइक यू आर 8 आउट ऑफ 10, यू आर 9 आउट ऑफ 10? व्हाट आर योर रीडिंग स्किल्स? आप कितना क्विकली इसको पढ़ पाते हो? इस एक्टिविटी से आपके पास कुछ चीजें आ जाएंगी। पहला, आपकी रीडिंग स्किल्स। दूसरा, पैसेज के अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। तीसरा, आप जो है वो मीनिंग्स को इन्फर कर पाते हो या नहीं कर पाते। नंबर 4 पे, क्या क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते। और देन जो है वो हम कल के सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे। उन एरियाज को देखेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, तो हाउ वी कैन रिफाइन इट, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक, कि हम उसको जो है वो रिफाइन कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। द फर्स्ट एक्टिविटी इज क्लियर। द पेपर ऑफ 2021 2 एंड 3, दो नेम निकल शेयर किए थे आपके साथ पेपर्स जो हैं। आपने इन पेपर्स के साथ जो है वो काम करना है, 5 5 सफ़ा पढ़ना है, और आंसर्स के जो हमारे पास सेक्शंस हैं उनको हमने हाईलाइट करना है। कोई मुश्किल काम नहीं। क्लियर? निशवा ताहिर साहिबा, क्लियर हो गया आपको? मुजम्मिल नवाज खोकर, खोकर नहीं है ये, कोहावर है शायद। मोहम्मद आमिर मुख्तार साहब, आमिर हाउ आर यू, कैसे हैं आप? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फ्लड नो? महानूर साहिबा, नईम साहिबा, नईम साहब, नईम साहब साहिबा, आई थिंक आपके नाम के साथ बाय डिफॉल्ट निकल जाता है, और आप इसके लिए शायद कोशिश कर रहे हैं। किडिंग ऑन अ लाइटर नोट, स्टे ब्लेस्ड। नईम इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सो नईम जो है वो आप लोगों के साथ भी काफी कोऑपरेट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है, इसमें हमने इसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास जो है आज की वोकैबुलरी नईम साहब ने आपके साथ शेयर की हुई थी, ठीक है। और आमिर, आपने फ्लड का नहीं बताया, एवरीथिंग इज फाइन ना? फ्लड ठीक है, नुकसान तो नहीं हुआ, कोई जानी माली कुछ ऐसे वैसे जो है वो चीजें? Everything is under control. Challenge. Thanks for the Almighty Lord of Heavens that if everything is protected, may the Lord keep you and your family protected. Oh my gosh. What about your village? Your village is in the, okay, mine too. I'm feeling sorry, Amir. May Almighty Lord of Heavens protect you. अच्छा जी, हमारे पास जो है आमिर, our best wishes are there, और like just take it as a trial. अलग अलग इजाज जो हैं वो आसानियाँ पैदा फरमाएं। हमारे पास अगला सेक्शन जो है वो वोकैबुलरी का सेक्शन। वोकैबुलरी का सेक्शन जो है वो अपडेट कर दिया गया था और बता दिया गया था। आज हमारे पास कोई मुश्किल वर्ड्स हैं नहीं, आज वर्ड्स हमारे पास काफ़ी इजी हैं।
और वो मुश्किल लगते भी हैं तो वो मुश्किल ना लगे। इन वर्ड्स को करवाने का मकसद ये नहीं होता कि इनको आपने याद करके अपने पास रख दिया है कहीं पर, ठीक है। डेली बेसिस पे वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वोकेबलरी पेज, और इसका ये एक्टिविटी इतनी फजूल नहीं है कि इसको बस जो है वो तैयार कर दिया गया है और आपने इसे करें या ना करें तो कोई इससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो मोटिव है कि रोजाना उठना, वर्ड की फाइल ओपन करना, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके इडियम्स बताना, और इडियम्स बताने के बाद मकसद समझाना, एक्सप्लेन करना, उसका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। उसका फायदा ये है कि ये वर्ड्स हमारे पेपर में इस्तेमाल करते हुए नजर आने चाहिए। बट मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि जब भी मैं कोई इंडिविजुअल एवेल्यूएशन सेशंस अटेंड करता हूँ, मैं राइटिंग्स को देखता हूँ, मुझे कोई वर्ड नजर नहीं आता। ना मुझे कोई वर्ड नजर आता है, ना मुझे कोई इडियम नजर आता है। मुझे फील होता है कि शायद मैं बड़ी लंबी लंबी जो है वो चौड़ी बातें लिख रहा होता हूँ एवेल्यूएशन सेशंस के अंदर, जो अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है, लेकिन द पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग द वोकैबुलरी। मैं एक जमाने में, मुझे ना बचपन में शौक था कुछ पोइट्री को याद करने का। मुझे आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। लेट मी शेयर अ पर्सनल स्टोरी। वैसे मैं अपनी स्टोरीज बताने पे ना तो कोई यकीन रखता हूँ और ना ही कोई इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं, लेकिन चलें खैर, शायद किसी को कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, शायद ये तरीक़ाकार किसी के लिए हेल्पफुल हो सके, और शायद कोई इससे कुछ सीख सके, अगर कोई सीखने वाली बात हुई तो। आई वॉज देयर इन अ लाइब्रेरी, तो मैंने वहां पे देखा देयर वाज अ बुक। द नेम ऑफ द बुक वाज, आपका पर्सनल में क्वेश्चन आया, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर ये रेलिवेंट हुआ तो। अच्छा, मैंने लाइब्रेरी में किताब देखी, वो थी मुसद्दस हाली मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। मुझे अच्छा लगा कि यार ये सब बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। मैंने एक बुक फेयर अटेंड किया तो वहां पे मुझे वो किताब मिली। एट दैट टाइम देवर अप्रोक्सीमेटली, वो किताब शायद 150 रुपीज की थी। ऑब्वियसली जिस जमाने से हम हैं वो जमाने कदीम है, डायनासोर्स का जमाना है, तो उसमें वो मिल जाती थी। बट आई वॉज डूइंग ऑन डेली बेसिस, अर्ली इन द मॉर्निंग मैं जो है वो तकरीबन उसकी पोइट्री की कोई 10 से 12 लाइन्स को पढ़ता था। और जब भी मैं नए वर्ड्स को पढ़ता था, नई लाइन्स को पढ़ता था, तो पुरानी को साथ मिलाता था, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी प्रेशर। साल हर साल गुजर गए हैं और अभी भी कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो सारी की सारी मुसद्दसे हाली मुझे वैसे ही असबर है, याद है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। शायद आपने कभी बचपन में थर्स्टी क्रो कहानी याद की होगी, वो आपको अभी तक याद होगी। आपने कभी जो है वो कोई ना कोई समरीज याद की थी 9th 10th में, आपको याद होगी। यू नो व्हाट इज द रीजन? you on daily basis keep revising now. So the point that I want to establish is, यार आपने इनको रिवाइज किया करें, ठीक है। वर्ड जो है वो बड़े इजी है, रुथलेस है, जिस जो कोई रहम नहीं दिखाता है। हमारे पास जो है वो विजिलेंटिज्म है, ऐसे पर्सन जो कानून को खुद हाथ में ले लेते हैं, जैसे कि जनावाला के अंदर हुआ था, ठीक है। हमारे पास जो है वो गीटोस है। ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो कि क्वाइट आसान है। आई आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनको जो है वो जरूर देखें। ये सेक्शन 2 है। मैं इस सेक्शन के अंदर आज करवा नहीं रहा, विलिंगली इसको छोड़ रहा हूँ। रुथलेस है, इनको देखें। ये जो इडियम्स इनके अंदर जो है वो लिखे हैं, रिपीटेटर्स है हमारे पास, टेक द लॉर्ड टू द स्ट्रीट्स है, ठीक है, इन द हार्ट्स ऑफ द गीटोस हैं। ये इडियम्स हैं जो कि मुख्तलिफ पीएमएस के पेपर्स में ऐसे इडियम्स पूछा जाता है, ठीक है। फिजा इज देयर, फिजा हमारी क्लास में है। अच्छा, फिजा शाकिर, ये जो पीएमएस के पेपर में ना ये ऐसे इडियम्स आते हैं। जंप आउट ऑफ वन स्किन जो है वो हमारे पास है, ठीक है। ये सारे के सारे इडियम्स हैं। सो टेक योर टाइम, इसको करें। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्टोरी टुडे, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी की इसको इस तरह से याद करो। दे आर वेरी इजी वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम, क्लास 11, खुदा हाफिज। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो थर्ड जो है वो स्टेप आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है, एज यूजुअल हमारे कुछ इडियम्स होंगे।
और जब मैं इडियम्स को समझाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप तो इनके ऊपर काम भी करें। ठीक है, ढेर सारा इनके ऊपर काम जो है वो करना जरूरी होता है। जब ईडियम्स के ऊपर आप काम करते हो ना, ईडियम्स तीन तरह से आपके पेपर में हेल्प करता है। पहली तरह से कि आपको इन इटसेल्फ ईडियम्स या पेरा वर्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरह से वो आपके हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी राइटिंग्स में यूज किया करें, आप उन्हें यूज नहीं करते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो हेल्प आउट आपकी करते हैं कि आपके एक्सप्रेशन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ग्रेट। वो आपके एक्सप्रेशन को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, ये जब मैंने एक्सप्रेशन लिखा, आमिर साहब, एक्सप्रेशन के ऊपर इंस्टा मैडम मैंने काफी डिटेल में जो है वो आई थिंक आपके ग्रुप में बात की थी कि आप अपने इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन है उसे बेहतर कैसे करते हो। इम्प्रेशन के ऊपर आपने काम ये करना है कि उन तमाम स्टेप्स को जो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, फॉलो करना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपका सारे का सारा ऐसे का पेपर फेल हो जाएगा अगर आपने अपने इंप्रेशन पे काम नहीं किया। अब ये इंप्रेशन होता क्या है? इंप्रेशन का मतलब आपके पास ये है कि जनाब, आप अपनी लैंग्वेज के साथ साथ कोहेरेंस, फ्लो, मीनिंग्स, इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर भी काम करें जो आपके एग्जामिनर को उसकी अटेंशन को ग्रिप के अंदर ले लें। अगर ये आप काम नहीं करते हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग दिस टाइम। वैसे नहीं करोगे। चलें जी, इडियम। सर, आई लर्न अ न्यू इडियम टुडे, ही न्यू हिज ऑन ओनियंस, काइंडली इसको एलिब्रेट कर दें। यार, इन इटसेल्फ ही एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा नॉलेज या स्किल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, किसी के ओनियन है और उसके अपने ही ओनियन है और वो उनको जानता है। ठीक है, मेरे ओनियन है, मैं ही उन्हीं को जानता हूँ। ये टर्म कोई ना, मेरा ख्याल है 1950s के बाद जो है ये टर्म ज्यादा पॉपुलर हुई थी। ठीक है, जब ओनियन जो है वो ज्यादा कॉमनली यूज हुआ करते थे कुकिंग में। ठीक है, बहुत सी डिशेस के अंदर जो है। सो ऐसे लोग जो कि समझा करते थे कि ओनियन जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये फ्रेज फिर जो है वो इस्तेमाल हो गई तब ये कि ये अपने ओनियंस को जानता है। इसका मतलब है इसे अपने काम के अंदर महारत है। ठीक है, जैसे आमिर साहब डॉक्टर हैं तो हसन साहब डॉक्टर हैं, तो ये अपने काम के अंदर जो है वो माहिर हैं। और आप एक टीचर हैं तो आप अपने काम के अंदर माहिर हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो डिटेल्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास है ब्लू वन स्टॉप। जैसे अभी जो है वो हम किसी को कोई काम कहें कि जनाब आप ये काम कर दीजिए, और गुस्से से उनका जो है वो पारा हाई हो जाए। नहीं, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? क्या मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया नईम साहब? मैं वेट करूंगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ब्लो वन स्टॉप जो है वो लूज वन टेम्पर। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बंदा आपका सर खाता चला जाता है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, बिला वजह तंग कर रहा होता है, इधर उधर की बातें, तो ही इज ब्लोइंग वन स्टॉप। प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस, डू नॉट ब्लो माई टॉप। ठीक है। दूसरे नंबर पे आज आसान इडियम्स हैं, हम कुछ ज्यादा करेंगे और मैं समझाऊंगा एक एक को। ठीक है। ए कुक एंड बुल स्टोरी बड़ा आसान है, बचपन से पढ़ते सुनते आए हो, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फुल स्टोरी। ठीक है। फाइंड वंस फीट। अच्छा, अभी ना जमीन पे कुछ लोग खड़े हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि मेरे अभी पाँव नहीं जमे, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, इसकी अभी शादी नहीं करनी है, ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। फाइंड वंस फीट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस, जब आपके पास हौसला जो है वो पैदा होता है, दैट इज फाइंड वंस फीट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल इट अ नाइट। कॉल इट अ नाइट का क्या मतलब है कि जब जो है आप काम कर रहे हो एंड आई एम सेइंग कॉल इट अ नाइट, इसका मतलब है कि क्लास खत्म करें और सर चलें, इसको जो है वो लेट्स कॉल इट अ नाइट एंड वी विल मीट टुमारो। ठीक है। डिले फॉर सम टाइम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि अभी हम जो है एग्जॉस्टेड हैं, चलो इसको खत्म करते हैं अभी के लिए। हाँ, डिले फॉर सम टाइम भी कह सकते हैं। द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग थ्योरी थी जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने दी थी। आइसबर्ग का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो नजर आ रही होती है उसका जो है वो सिर्फ टिप वाला हिस्सा जो है वो, जो कि अब इजीली नजर आ रहा होता है, लेकिन असल कहानी जो है वो कुछ
नीचे होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टू पुट द लीड ऑन। टू पुट द लिड ऑन, जैसे अभी जो है वो कुछ गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है। वो क्या ले रही है? महंगाई करते चले जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चले जा रही हैं, डॉलर ऊपर चलता चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास गवर्नमेंट का जो प्लान है कि हमने जो है वो ज्यादा देर तक इंटरिम गवर्नमेंट को रखना है, वो फेल हो जाएगा। टू पुट द लिड ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ढक्कन दे देना, किसी चीज को कवर कर देना, किसी चीज को जो है वो इस तरह से कवर कर देना कि वो चीज आपके पास मुकम्मल तौर पर छुप जाए, उसके प्लान को फेल कर देना। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि द प्रेजेंट स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट पुट द लिड ऑन द टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये हमारे पास भी हो सकता है। जैसे इंडिया ने कल एक नापाक हरकत करके हम सबका दिल दुखाया है। चंद्रयान पे उसने अपने नापाक तैयारी को लॉन्च किया है, और हम इंशाल्लाह सूरज पे जाएंगे, और सूरज से भी आगे का प्लान है हमारा। चांद, सूरज, सितारे सब के सब हमारे हैं। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लिट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुट द लिट ऑन द एम्स ऑफ द इंडिया। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे तारे बनाएं कि हम जो है वो सबके सब प्लैनेट्स पे एक ही दफा जो है वो चले जाएं। सो जी, किसी के प्लान को फेल कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेवर ऑफ द मंथ। फ्लेवर ऑफ द मंथ। फॉर कॉल इट ए नाइट, किसी काम को जो है वो अभी के लिए खत्म कर देना। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि एक आइसबर्ग है, ये सॉरी ये इंच नहीं है, आइसबर्ग है। आइसबर्ग का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, जो किसी चीज का थोड़ा सा नजर आ रहा होता है। ठीक है। फ्लेवर ऑफ द मंथ, मंथ का मतलब होता है जी मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर होना किसी चीज का। नेक्स्ट हमारे पास है जी जीरो आवर्स। जीरो आवर्स का क्या मतलब है? जीरो आवर्स का मतलब होता है कि जब हमने प्लान कर लिया कि ये एक्टिविटी बिगन हो जाएगी। ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि जिस तरह से नईम साहब ने आज की क्लास में भेजा था कि जी 9:30, किसी ने पूछा ये लिंक नहीं काम कर रहा, उन्होंने 9:30 भेजा। दैट मीन्स 9:30 इज द जीरो आवर्स फॉर आवर क्लास। जीरो आवर्स, जब कोई टाइम, ऐसा टाइम, टाइम when a certain activity is planned to have to begin। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जीरो आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूम एंड डूम। ग्लूम एंड डूम। ग्लूम एंड डूम का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ होप। जब आपने जो है वो उम्मीद का दामन छोड़ दिया, वो हमारे पास होगा ग्लूम एंड डूम। ठीक है। जिस तरह से जनावाला के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, द क्रिश्चियन दे आर इन ग्लूम एंड डोम। ठीक है। दे इज अ वाइड स्प्रेड ग्लूम एंड डोम इन जनावाला। ठीक है। एक मायूसी फैल जाना। टू पिग ईट टू मच। ठीक है। जैसे पिग होता है ना, पिग जो होता है वो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है। इतना ज्यादा खाता है कि बस अखीर हो जाती है। तो पिग आउट का मतलब होता है कि पिग की तरह खाते चले जाना। ईट टू मच है वो। हम ये कह सकते हैं एवरीवन एवरीवन वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू पिग आउट इन द मैरिज सर्मनी। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अमूमन होता है। बैग पीपल, ईडीएम ही बता रहा है। बैग पीपल, ऐसे लोग जिन्होंने अपने बैग्स पीछे पहने होते हैं। आपके जहन में तबलीगी जमात वाले आते होंगे, लेकिन ये बैग पीपल का मतलब वो लोग होते हैं जो कि होमलेस होते हैं, जिनका घर नहीं होता है। ठीक है। इधर उधर जो है वो जो चक्कर लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कंपैशन फटीग। कंपैशन फटीग का क्या मतलब होता है? जब आप जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपोजर उसका दे रहे होते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है कुछ लोग हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं। अब उनको जैसे वो अपनी ड्यूटी एंड करने लगता है, तो कोई ना कोई पेशेंट और आ जाता है। सो कंपैशन फटीग। अब वो क्या होता है कि उनके लिए जरूरी है कि वो उसको भी अटेंड करें, तो उनकी जो निजी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती। सो ओवर एक्सपोजर ऑफ प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है। इंक्रीजेस द प्रॉब्लम। आमिर इज फेड अप विद मेडिकल प्रोफेशन ड्यू टू कंपैशन फटीग। ठीक है।
आई एम टायर्ड ऑफ माई प्रोफेशन ओइंग टू कंपैशन फटीग। समझ में आया? कंपैशन फटीग की वजह से मैं इसे नहीं करना चाहता। ट्विडल विद का मतलब होता है किसी के साथ जब आप प्ले कर रहे होते हो, ठीक है, खेलते हो बच्चों के साथ जो है वो, छोटे छोटे बच्चों के साथ। स्टॉप ट्विडलिंग विद द बेबीज, इट इज टाइम फॉर योर पेपर। वैम्प अप, वैम्प अप का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हो, ठीक है, अट्रैक्टिव बना देते हो और एक्साइटिंग बना देते हो, वो वैम्प अप होता है। नंबर 15 पे हमारे पास है विटल अवे। विटल अवे का क्या मतलब होता है? विटल अवे का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिड्यूस कर देते हो, जब आप किसी चीज को रिमूव कर देते हो। नंबर 16 पे आपके पास है विंकल आउट। विंकल आउट का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज जिसको आप कर तो रहे हो बट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, कोई काम कर रहे हो बट यू आर विंकिंग आउट, ठीक है। सो जो है जिस जो आपको लगता है कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। गिव समवन अ बम्स रश। गिव समवन अ बम्स रश जो है, इसका मतलब होता है कि किसी से बिल्कुल निजात हासिल कर लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है, हम लोगों ने क्या किया, वी गोट अ बम्स रश फ्रॉम द ब्रिटेन, हमने निजात हासिल कर ली। द द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गोट ए बम फ्रॉम पीडीएम, फ्रॉम गोट ए बम्स रश फ्रॉम पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो है मूवमेंट जो है उनसे उन्होंने निजात हासिल कर ली। नंबर 18 पे है जी हमारे पास है लूम लार्ज। लूम लार्ज का क्या मतलब है? लूम लार्ज का मतलब होता है टू हावर ओवरहेड, ठीक है। टू हावर ओवरहेड की किसी के सर के ऊपर चक्कर लगाते जाना, घूमते चले जाना, जैसे कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, सो दैट इज लूमिंग लार्ज ओवर योर हेड। बी सेटिंग सिन। बी सेटिंग सिन का मतलब होता है कोई फ्लॉ होना कहीं पे, इसका मतलब होता है कोई शॉर्ट कमिंग जो है वो होना, कोई फ्लॉ होना, कोई शॉर्ट कमिंग होना, वो बी सेटिंग सिन होती है। और लास्ट हमारे पास है टू हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब होता है जब आप आग लटका देते हो, उसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि इस चीज को डिले कर दिया जाए, ठीक है। आप किसी काम को डिले करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द ब्यूरोक्रेट्स प्रिफर टू हैंग फायर इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग इट। वो काम करना नहीं चाहते, वो ये चाह रहे होते हैं कि इसको हम जो है वो हैंग फायर कर दें। ये जी आपके पास वो 20 इडियम्स हैं जिन्हें आप यूज करेंगे। इनको जो है अपने पेपर के अंदर आप जब लिख रहे होते हैं कोई भी ऐसे वगैरह, तो वहां पे भी आप इस्तेमाल करो। आखिरी एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूंगा एमपीटी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। एमपीटी का ऑफिशियल चालान भी अभी तक जो है वो कोई नहीं आया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली कि वो चालान जो है वो आ जाएगा। 13 12 17 रिपीट कर दें। कहाँ है जी? 12 है। कंपैशन फटीग है, मुस्फिरा। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करते हो, बच्चों के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए। अब आप चूंकि बच्चों के साथ खेलना ये आपका जो है वो प्रोफेशन भी बन जाता है, आप क्या करोगे कि जब आपको कोई कहे कि जी आप इनके साथ ही खेलते रहो, तो आप कहोगे कि मैं जो है वो कंपैशन फटीग का शिकार हो चुका हूं। नईम साहब ने जो है वो एक ट्वीट शेयर की है, तो हमारे पास जो है वो आई वुड एडवाइज यू टेक पेशेंस वेट फॉर द ऑफिशियल आल्सो एफपीएससी चेयरमैन सीट आर वेकेंट। मुझे लगता है ये किसी नॉविस ने लिखा हुआ है, नहीं किसी के फेक होने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए ना। चेयरमैन सीट आर वेकन एंड होप टू सी एडवर्टीजमेंट फॉर, पता नहीं उसने कैसी इंग्लिश लिखी है। ऑल्सो देर इज अ फेक, अल्लाह इसको ठीक करे। अच्छा हमारे पास जो है ना, याद रखोगे कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। सो जैसे ये टाइम लेगा, जिन्होंने जैसे ही टाइम लेगा तो ऑब्वियसली द थिंग्स विल बी क्लियर। गिव समवन ए बम्स रेस जो है वो नंबर 17 पे, इसका मतलब ये था कि किसी से निजात हासिल कर लेना, ठीक है।
जिन लोगों ने ऑलरेडी चालान पे कर दिया है, कोई बात नहीं यार, गवर्नमेंट वैसे भी पैसों की जरूरत है, दोबारा कर दीजिएगा। ठीक है, दोबारा दे दीजिएगा एक दफा, वैसे तो कोई मसला नहीं है। एक दफा भी आपने कर दिया, वो चालान भी मेंशन हो जाएगा। चालान तो साला साल इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फील करें तो एक दफा और भी दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह को सुकून मिले, तो एक दफा फिर भी दिया जा सकता है। वैसे पहले वाला भी कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें तो। ओके जी, दैट इज समथिंग फ्रॉम माय साइड। कोई और क्वेश्चन आपका है, कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो, उससे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुलाकात होती है आपसे कल। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।